Good morning students, welcome back in your maths online class. So today we will start types of fraction. First is proper fraction. As the name shows, a fraction whose numerator is greater than 0 but less than its denominator is called a proper fraction. See for example 2 by 3, 3 by 7, 13 by 128. In this you can see that numerator are smaller and the denominator are greater, so that these are the proper fractions. Next, note that all proper fractions lie on the left of 1 and on the right of 0. That means जितने भी ये proper fractions हैं ये क्या है, left of 1 और right of 0 में क्या करेंगे, आपको मिलेंगे. Next is improper fraction. It means that on the number line. Improper fraction. A fraction whose numerator is equal to or greater than its denominator is called an improper fraction. For example, you can see here the denominators are smaller and the numerators are bigger. So these are improper fraction. Next is if a number is given, see. Notice that every natural number can be written as fraction. If a number is given, for example 7 is given and you have to write it as a fraction, then you will put 1 on as a denominator. Okay. So 5, 5 by 1, 21, 21 by 1, etc. So every natural number is an improper fraction. It means कि जितने भी natural numbers हैं वो क्या है, improper fraction है. Next is mixed fraction. As the name shows, mixed fraction. In this what happens? A number which consists of two parts. For example, one will be the natural number and other part will be the fraction. For example, if we have a number, wait a minute students. For example, if we have a number like we have number 5, okay, then it is a natural number, and if it is 1 by 6, then it will be mixed fraction. In this, to change it into a fraction, what we will do? First of all, we will multiply this. 6 5s are 30. So 30 plus 1 is equal to 31, 31 by 6. Okay, understood? For example, 2 1 by 7. First of all, multiply 2 7s are 14. 14 first we multiply, then add it. Okay, 2 plus 2 7s are 14. 14 plus 1 1 15. 15 by 7. These are the mixed fractions. For example, as you can see in the example 2 3 by 11 is a mixed fraction, as it consists of two parts. This is the natural number and this part is the which proper fraction. You can see here the numerator is smaller and the denominator is bigger, so it is a proper fraction. In this, always this will be the proper fraction. Okay, every improper fraction can be written as a, जितने भी हमारे पास यहाँ पे सिमिलरली 5 by 7, 5 7s are 35 plus 3. Okay, every improper fraction, improper, you know, these are the improper where the numerator is bigger and the denominator is smaller. So every improper fraction can be written as a mixed fraction, and every mixed fraction can be written as an improper fraction. Okay, every improper, that means these improper fraction can be written as a mixed fraction. So how these are converted, let's see. See, 13 by 5. Okay, that means 13 को आपको किससे डिवाइड करना है, 5 से. Okay, so 5 2s are 10. Okay, this is 3. Okay, now what we will do? So first of all, see, 3 5s are 15 and 2 17. In this what we will do? We have to, in this what we will do? See, converting an improper fraction into mixed fraction. Divide numerator by denominator to get the quotient and the remainder. Then the formula will be quotient remainder denominator. See, if I have shown you like 13 divided by 5, 5 2s are 10. So it is 3. So what we will do? The formula is Q, R and D. That means you will start from here 2, 3 and 5. Okay. So first of all you will write here 2, then next number will be 3 and next will be 5. अब इसको करके देखिए 5 2s are 10, 10 plus 3 13, 13 by 5. और हमने किसको कन्वर्ट किया था, 13 by 5 को. यहाँ पे एग्जाम्पल में आप लोग और देख सकते हैं. सी, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ मिक्स फ्रैक्शन. अब ये आपके पास क्या है, 20
डिवाइडेड बाई 3. सो सी, आपने 3 को डिवाइड किया, सो कितना हुआ 3 6 ज़ा 18. अब हमें कहाँ से चलना है, इस साइकिल को अपने को कहाँ से स्टार्ट करना है, ऊपर से. यहाँ से 6 2 3. सो क्या लिखेंगे, पहले 6, उसके बाद नीचे वाला नंबर 2 और उसके बाद में 3. और अब इसको सॉल्व करके देखिए, 6 3 ज़ा 18, 18 + 2 कितना हुआ 20. ओके. सो इस तरह हम एवरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जितने भी हम लोग जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको नहीं, जितने भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है खाली उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कैन बी रिटर्न अ मिक्स फ्रैक्शन. यानी हमारे पास जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, देखिए क्योंकि यहाँ पे आपका ये स्मॉलर है और ये क्या है बिगर, तो ये इम्प्रॉपर है, तो इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर दिए, मिक्स फ्रैक्शन में यहाँ पे. और इस मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग फिर से इम्प्रॉपर में कर सकते हैं. 3 6 ज़ा 18, 18 + 2 20, दैट इज़ 20/3. ओके. नाउ कन्वर्टिंग अ मिक्स फ्रैक्शन इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके. अभी जैसे यही बताया था क्या करना है, 2 6 आपका क्या हुआ, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो क्या करोगे, 2 6 12, 12 + 5 17/6. ओके. नेक्स्ट इज 7 5 35, 35 + 2 37, 37/5. ये आप लोगों ने पहले भी अपनी क्लास में पढ़े हैं. अब है हमारे पास लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन. अब क्या होता है, 2 or more fractions having same denominator are called like fraction. That means if the denominators are the same then it will be like fractions. Okay. See in this example all the denominators are same. तो अगर इस तरह के जब भी डिनोमिनेटर सेम है तो यू कैन राइट इजीली इन असेंडिंग ऑर्डर. इसमें जो छोटा है दैट मीन्स 3 इज द स्मॉलेस्ट, तो ये छोटा है, फिर ये 6 है तो ये बड़ा है, उसके बाद 11 है तो ये 25 है. तो ये सिंपल आपका कौन सा असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा. लेकिन इट विल हैपन ओनली इन लाइक फ्रैक्शन इन वेयर द डिनोमिनेटर्स आर द सेम. नेक्स्ट इज 2 or more fractions having different denominators are called unlike fraction. अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, आपके सारे फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर्स हैं क्या डिफरेंट, दैट मीन्स ये अनलाइक यानी एक जैसे नहीं, लाइक मतलब एक जैसे. तो एक जैसे कहाँ पर है, जब आपके डिनोमिनेटर सेम है, और अनलाइक कहाँ पर है, जब आपके क्या है डिनोमिनेटर सेम नहीं है. ओके. नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. यानी अब क्या होता है, देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में क्या होता है, यानी आप इनको बराबर बांट रहे हो. लुक एट द एडजॉइनिंग रेक्टेंगल, वी डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड शेड वन पार्ट टू गेट हाफ. ओके. इफ़ वी डिवाइड द सेम रेक्टेंगल इनटू 4 पार्ट्स, अब ये 4 पार्ट्स है, सो वी नोटिस दैट हाफ इज सेम एज 2 4. यानी ये जो था इसमें भी अब इसको हमने शेड किया है 1 2 3 4, 4 में से हमने 2 पार्ट शेड किया, दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो हाफ. और अगर 2 में से भी हम इसको 1 पार्ट को करते हैं तो ये भी हाफ है. तो ये कौन से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. अब किसी नंबर को कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताएंगे वो आगे बताएंगे. नोट दैट द फ्रैक्शंस हाफ कैन बी एक्सप्रेस इन मैनी वेज. अब ये है कि जो हाफ है इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं, कल यहाँ देखिए हाफ, अब ये 2/4 है, दैट मीन्स ये क्या हो गया 1/2. 3/6 है तो ये 1, 3 की टेबल में 3 2 ज़ा, 4 1 ज़ा, 4 2 ज़ा. इन सबको हम कैसे कर सकते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में. 1/2 को कैसे लिख सकते हैं, 2/4, 3/6, 4/8. दैट मीन्स क्या हो रहा है, ये आपका सिंपल हाफ हो रहा है. अब इसके आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा 5, 5/10, 6, 6/12. दैट मीन्स इसका जस्ट डबल, यानी देखिए 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, 5 का डबल 10, 6 का डबल 12, 7 का डबल 14, 8 का डबल 16, 9 का डबल 18, 10 का डबल 20. इस तरह हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाते जाएंगे. ओके. सिंस द अबव फ्रैक्शंस आर इक्वल इन वैल्यू, अब ये हमारे जितने भी फ्रैक्शंस हैं इक्वल इन वैल्यू, दीज आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. जिन फ्रैक्शंस की वैल्यू इक्वल होती है उनको क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. दस 2 or more फ्रैक्शंस आर कॉल्ड इक्विवेलेंट. इसलिए दो फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट कब कहते हैं और इक्वल फ्रैक्शन, इफ दे हैव द सेम वैल्यू. नाउ सी, notice that the values of the fraction does not change if the numerator and denominator are multiplied by the same non-zero number dividing by the same non-zero number. अभी देखिए हम आपको इसके नीचे एग्जांपल्स बताएंगे, उसको आप समझिएगा. अब ये देखिए, डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बाय द सेम नंबर इज यूजुअली कॉल्ड कैंसलिंग.
जैसे हमने अभी आपको बताया था 2/4, इसको सेम नंबर से करोगे, दैट मीन्स 2 से करोगे 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, इसको क्या कहते हैं, कैंसिल करना। अब यहाँ देखिए, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड रीजन्स, आर ऑल दीज फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट? हियर सम फिगर्स आर गिवन एंड यू हैव टू फाइंड आउट वेदर दीज आर इक्विवेलेंट और नॉट. So let's see how many are shaded. So see in this picture, 1 2 3 4 5 6 7 8. So total are, see, 8. And how many portion are shaded? 1 2 3 4 5 6. See, next is 1 2 3 4, no, 5 6 7 8 9 10 11 12. So it is 12, and 1 2 3 4 5 6 9 portions are shaded. In next picture there are 16 blocks, in from which 12 are shaded. In next 20 are there and 15 are shaded. So फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द अबव, ये तो आपको मिल गया. अब ये कह रहा है क्या ये सारे फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है? तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में क्या होता है, यू हैव टू कैंसिल द नंबर. ठीक है, अभी जैसे हम लोगों ने हाफ बनाया था, अब इसको देखिए. फर्स्ट इज़ हमारे पास 6/8. ओके, नेक्स्ट नंबर इज़ हमारे 9/12. नेक्स्ट नंबर इज़ 12/16 एंड 15/20. सो अब एक ही नंबर से इनको कैंसिल करते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं 3 की. पहले हम लोग 2 की टेबल से स्टार्ट करते हैं. सो 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा. ओके, इसको करते हैं 3 की टेबल से. 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12. अब यहाँ 4 से करते हैं. 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16. अब 5 से करते हैं. 5 3 ज़ा एंड 5 4 ज़ा. सी 3/4 3/4 3/4 3/4, यानी इन सब में हमारे पास क्या आया, 3/4. दैट मीन्स ये क्या है, जब इक्वल वैल्यू आई, तो जब भी किसी फ्रैक्शंस की इक्वल वैल्यू आती है तो दोज आर नोन एज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ओके, अंडरस्टूड. अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए, रिप्लेस डैश इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय द करेक्ट नंबर. अब यहाँ पे आपके पास है 1/3. इसको आपको एक्सप्लेन करते हैं. 1/3 इज इक्वल टू, अब इसको हमें इक्विवेलेंट बनाना है, तो यहाँ पे ये हमें दोनों एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है. अब आपको पता है ये 27 है, सॉरी 21 है. ओके, तो अब आपको पता है 21 है, तो 3 की टेबल में 21 कब आता है, 3 7 ज़ा, तो यानी हमें इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करना है. दैन इट विल बी 7/21. ओके, नेक्स्ट इज 45/60. अब यहाँ पे देखिए डैश है. अब आपको इस तरफ दे दिया, ये तो यहाँ था, तो दैट मीन्स हम लोग 3 से 45 को डिवाइड करते हैं, तो कितना होता है, 3 15 ज़ा 45. दैट मीन्स यहाँ पे ऐसा क्या नंबर आए कि हमें क्या मिलेगा, ये देखिए 3 15 ज़ा. तो अब यहाँ पर 15 है. ओके, 15 से अभी हमें क्या करना है, डिवाइड करना है. तो 45 को सी, जब इस तरह का, यहाँ तो हमने आसानी से कर लिया, इस क्यों, 3 7 ज़ा 21, यानी उसी नंबर से इसको करना है. लेकिन अपोजिट है, अब यहाँ पे आपको नहीं पता चल रहा क्या है, तो क्या करोगे, अब यहाँ पर किससे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, ये 45 है, तो आपको 3 कब मिलता है, 45 को किससे डिवाइड कर रहे हैं, तो 45 को अगर 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें 15 मिल रहा है. दैट मीन्स इन दोनों नंबर को हमको 15 से डिवाइड करना है, यानी 45 डिवाइडेड बाई 15 एंड नेक्स्ट 60 डिवाइडेड बाई 15. ओके, 60 डिवाइड, दैट मीन्स इट विल बी 3/4. अंडरस्टूड. तो इस तरह इसको करना है. अब है चेक फॉर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. अब कोई नंबर इक्विवेलेंट है या नहीं, उसको कैसे चेक करेंगे. अगर आपके पास इस तरह 2 नंबर है, तो आप लोग क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे. फॉर एग्जांपल हमारे पास है 3/7. ओके, और नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 12/28. तो हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे. तो पहले हमने इस नंबर को मल्टीप्लाई किया, तो पहले हम लोग इसको इधर लिखेंगे, फिर हम इसको इधर लिखेंगे. यहाँ पे देखिए बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. फर्स्ट इज 328 ज़ा, तो 328 ज़ा क्या है आपका, 84. अब 12 7 ज़ा आपको पता है 84. दैट मीन्स दीज फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट. ओके, नेक्स्ट 8 30 ज़ा, तो कितना होता है, पहले इधर वाला करना है जो लेफ्ट में कर रहे हैं. 8 30 ज़ा 240, और 24 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू ऑल्सो 240. दैट मीन्स दीज बोथ फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट. ओके, अगर किसी फ्रैक्शन को पता करना है कि इक्विवेलेंट है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसी तरह करेंगे. इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट रूल. ओके, अब यहाँ पे देखिए चेक वेदर द, वो सेम है यहाँ पे, चेक वेदर द गिवन पेयर्स ऑफ फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट. यहाँ 5 और 54 है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 5 को हम लोग 54 से मल्टीप्लाएंगे, 30 को 9 से करेंगे. तो 5 54 से आपका कितना, 270, और 9 3 से 270. दैट मीन्स बोथ आर
equivalent. Okay, in the same way 7 and 52 and 21 by 13. So 7 को आपने 52 से मल्टीप्लाई किया तो 364 and 13 multiplied by it is 273. That means these fractions are not equivalent. So students, हम लोग इस वीडियो में इतना ही पोर्शन करेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ओके.